پریز گاڈ. خدا یسوع مسیح کے زندہ جلالی و برکت اور پرفضل نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام. میں خدا کی خادمہ پاسٹر سونیا ایمینول خدا ان کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خداوند نے مجھے یہ موقع عطا کیا ہے کہ آپ کے ساتھ خدا کی زندہ آواز کو شیئر کر سکوں. اس کے بعد میں خدا کے خادم بردر جوید کا، پر امید سوسائٹی کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے مدعو کیا کہ یہاں پر آ کر خدا کی زندہ آواز آپ تک پہنچا سکوں. خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، اور میرا ایمان ہے کہ آج کے میسیج کے وسیلہ سے آپ یقیناً برکت پاتے ہوں گے. آج کے کلام کے وسیلہ سے یقیناً آپ برکت پائیں گے. ناظرین، بہت سے کلام مقدس میں ٹاپکس ہیں، نجات کے بارے میں، یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں، یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں، اور معجزات کے بارے میں، شفا کے بارے میں. بہت سے ٹاپک ایسے ہیں جو آپ سنتے ہیں. تو خداوند نے میرے دل میں یہ ڈالا کہ میں آپ کو جس ٹاپک پر کلام سناؤں وہ ہے سیکنڈ کمنگ آف جیزس کرائسٹ، یعنی کہ یسوع مسیح کی دوسری آمد. ہم سب کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں ہمارا منجی بن کر آیا، یسوع مسیح اس دنیا میں ہمارا نجات دہندہ بن کر آیا. اور جب دنیا میں گناہ بڑھ گیا، گناہ کے وسیلہ سے غلاموں کی منڈیاں لگنے لگی، لوگ انسانوں کو ہی خریدنے لگ گئے، انسانوں کو ہی اپنا غلام بنانے لگ گئے. ہر طرف افراتفری کا دور تھا، ابلیس نے ایک ہلچل مچائی ہوئی تھی اور لوگ گناہ میں مر رہے تھے. تب خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنا اکلوتا بیٹا بھیجوں گا اس دنیا میں تاکہ میرا بیٹا اپنا خون بہائے، صلیب پر قربان ہو، اور انسان جس کو اس نے بڑی محبت سے، بڑی چاہت سے، بڑے پیار سے بنایا وہ بچ جائے. اور ہم 25 دسمبر کو یسوع مسیح کی پیدائش کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور ہماری زندگی میں بہت ہی خوبصورت دن ہوتا ہے کیونکہ ہمارا منجی اس دنیا میں آیا. اور پھر ایسٹر کو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی ہم عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم روزوں کے ایام کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس بات کی یادگاری کرتے ہیں کہ کس طرح یسوع مسیح ہماری خاطر پکڑوایا گیا، کس طرح ہماری خاطر رومیوں نے، یہودیوں نے مل کر اس کو ذلیل کیا، کس طرح اس کو ٹھٹھوں میں اڑایا گیا، کس طرح یسوع مسیح پر الزامات لگے، اور کس طرح اس کو ڈاکوؤں کے درمیان میں ایک ڈاکو سمجھ کر، ایک گناہگار سمجھ کر، حالانکہ وہ بے عیب برا تھا، پھر بھی اس کو ڈاکوؤں کے بیچ میں لٹکا دیا، اور اس کے ہاتھوں پر کیل ٹھونکے گئے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج، پیروں میں کیل، پسلی میں نیزے مارے گئے، اور یہاں تک کہ رومیوں نے اس کو جان سے مار دیا. اور یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے مر گیا. جس مقصد کے لیے وہ دنیا میں آیا وہ مقصد اس نے صلیب پر پورا کر دیا، اور اپنے کہنے کے مطابق وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اور ہم اس کی یادگاری میں ریزوریکشن ڈے مناتے ہیں، ہم عید قیامت المسیح کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہ منجی جو پیدا ہوا، جو معجزات کر کے گیا، منسٹری کر کے گیا اس دنیا میں، اس کے بعد وہ مصلوب ہوا، جی اٹھا، اور 40 دن شاگردوں پر اور دوسرے لوگوں پر ظاہر ہونے کے بعد وہ صعود فرما گیا، یعنی کہ آسمان پر چلا گیا. اب بطور مسیحی ہوتے ہوئے ہر ایک مسیحی کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جس طرح وہ زمین پر آیا، نجات دے کر گیا، اب ویسے دوبارہ وہ دنیا میں آنے والا، اور بہت جلد آنے والا ہے. اور کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور 7ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے. بے شک آمین. خدا کے زندہ پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سبوں کے لیے خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو. یہاں پر میرے عزیزو ہم نے مکاشفہ کی کتاب میں پڑھا، اور مکاشفہ کی کتاب نبوت کی کتاب ہے، اور ایسی کتاب ہے واحد کلام مقدس کی جس میں آنے والے وقت کی پیش گوئی کی گئی ہے. اگر ہم پرانے عہد نامے کا جائزہ لیں تو وہاں پر جس بات کی پیش گوئی کی گئی تھی یسوع مسیح کے بارے میں خاص طور پر، وہ ساری پیش گوئیاں نئے عہد نامہ میں پوری ہوئی. اور واحد مکاشفہ کی کتاب ایسی نبوت کی کتاب ہے جس میں ابھی آنے والے وقت کی پیش گوئی کی گئی ہے، اور اس وقت کے لیے میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے.
اور यूहन्ना आरिफ कह रहा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। यूहन्ना यीशु मसीह का वो शागिर्द है जिसको यीशु मसीह बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जब यीशु को मसलूब करने का वक्त आया, यीशु पर दुख की घड़ी आई, जब यीशु को अपने शागिर्दों की ज़रूरत थी तो सारे शागिर्द भाग गए, लेकिन वाहिद यूहन्ना था जो सलीब तक यीशु के पीछे गया। और यीशु ने यूहन्ना पर इतना एतमाद किया, भरोसा किया कि अपनी माँ भी उसने यूहन्ना के सुपुर्द ही की थी। और यूहन्ना को कहा था कि ये तेरी माँ है, और अपनी माँ को कहा था देख ये तेरा बेटा है। उनका कनेक्शन खुदा ने बनाया। खुदा उससे बहुत प्यार करता था। और बाकी शागिर्द, किसी को संसार किया गया, किसी को शहीद किया गया, मारा गया, उनको कत्ल किया गया, लेकिन यूहन्ना वाहिद ऐसा शागिर्द है जो कुदरती मौत मरा, ना किसी बीमारी से, ना किसी हादसे से, ना ही किसी ने इसको मारा, बल्कि खुदा की तरफ से इसको मौत आई। और मरने से पहले जब वो पतमिस के जजीरे में कैद था तो कैद की हालत में यीशु मसीह उस पर जाहिर हुआ। यीशु मसीह ने खुद उसको ये मुकाशफा लिखवाया। और जब यीशु मसीह ने लिखवाया मुकाशफा तो 7वें बाब में, पहले बाब की 7वीं आयत में लिखा है, देखो वो बादलों के साथ जल्द आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे। ये आयत पढ़ने से पहले मैंने आपको सारा मंजर बताया कि किस तरह वो दुनिया में आया नजात दहिंदा बनकर, किस तरह जब वो 30 साल की उम्र में था तो उसने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की। और जैसे ही 30 साल की उम्र में यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री शुरू की, मोजज़ात करने शुरू किए, तो फ़की फरीसी सारे उसके ख़िलाफ़ हो गए। रूमी हुकूमत उसके ख़िलाफ़ हो गई, क्योंकि जो रूमी हुकूमत का बादशाह था, शहनशाह था, वो पसंद नहीं करता था कि मेरे अलावा किसी और को बादशाह कहा जाए, क्योंकि यीशु मसीह को यहूदियों का बादशाह कहने लग गए थे। और रूमी हुकूमत के बादशाह को ये बात पसंद ना आई और वो भी लोगों की प्लानिंग में शामिल हो गया और उसने भी यीशु मसीह को मसलूब करवा दिया। और अब यहाँ पर लिखा है कि वो आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने छेदा था वो भी देखेंगे। ये बात हो रही है रूमी हुकूमत की और उन तमाम यहूदियों की जिन्होंने यीशु मसीह को छेदा था, जिन्होंने उसके सर पर कांटों का ताज रखा था, जिन्होंने उसके हाथों पाँव पर कील ठोंके थे, जिन्होंने उसकी पसली में नेज़ा मारा था, जिन्होंने उसको ठट्ठों में उड़ाया था। कलाम में लिखा है कि वो हर एक आंख उसे देखेगी। वो लोग जो उस वक्त यीशु मसीह को बादशाह कबूल नहीं कर रहे थे, यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल नहीं कर रहे थे, यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ा रहे थे, अब जब उसने दोबारा आना है तो वो सारे उसको देखेंगे। कलाम में लिखा है। और फिर ये भी लिखा है कि सब कबीले, ज़मीन के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। यानी कि वो लोग जिन्होंने यीशु को पहचाना नहीं, जब वो दोबारा आने वाला है, दोबारा उसको आते हुए बादलों के साथ देखेंगे तो छाती पीटेंगे। छाती किस लिए पीटेंगे? इसलिए कहेंगे हाय ये तो हमारे दरमियान में रहा, हाय इसने तो हमें नजात के बारे में बताया, लेकिन हमने इसको कबूल नहीं किया, लेकिन हमने इसकी बातों पर अमल नहीं किया। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी तक यीशु को नजात दहिंदा कबूल नहीं करते, जो अभी तक यीशु मसीह को मानते नहीं हैं, अभी तक उन्होंने इस बात का इकरार नहीं किया हुआ कि वाकई ही मसीह नजात दहिंदा है। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस लिस्ट में, इस सफ़ में खड़े होंगे, जो छाती पीट रहे होंगे और कहेंगे कि यीशु मसीह तो हमारे लिए आया, नजात उसने हमें दी, लेकिन हमने इसको कबूल नहीं किया। अगर हम पतरस का ख़त देखें तो वहाँ पर पतरस बड़ी खूबसूरती के साथ बता रहा है हमें यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में। दूसरा पतरस उसका 3 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा, 3 आयत में लिखा है, और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खिलकत के शुरू से था। आमीन। पतरस यहाँ पर कह रहा है कि आखिर ज़माना में ऐसे लोग आएंगे जो ठट्ठों में यीशु मसीह को उड़ाएंगे और कहेंगे कित्थे गया ओदा वादा, उसने तो कहा था कि मैं जल्द आने वाला हूँ। हज़ारों साल से जब से खिलकत का आगाज़ हुआ है, दुनिया बनी, हम यही सुन रहे हैं कि यीशु जल्द आने वाला है, कहाँ गया उसका वादा। और मेरे अजीज़ों, वाकई ये आखिर वक्त जा रहा है और अभी भी बहुत से लोग अपनी ऐशो इशरत में पड़े हुए हैं। कलाम में लिखा हुआ है, कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि वो अपनी ऐशो इशरत में ज़िंदगी बसर करेंगे।
अगर हम तीसरी आयत में पढ़े, लिखा है कि हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे। अभी भी लोग अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चल रहे हैं, अभी भी लोग अपनी ऐशो इशरत में ज़िंदगियां बसर कर रहे हैं। वो भूले हैं कि जजमेंट का वक्त आने वाला है, हमारी अदालत का टाइम आने वाला है। ये सब कुछ भूलकर वो अपनी ऐशो इशरत में पड़े हैं। हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है, किसी को घर बनाने की फ़िक्र है, किसी को शादी करने की फ़िक्र है, किसी को जायदाद बनाने की फ़िक्र है। हर तरह के लोग जो है तरह तरह की मुसीबतों में फंसे हुए हैं और ये वादा भूल चुके हुए हैं कि यीशु मसीह ने आना है। बल्कि वो मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा करते हैं कि कहाँ गया उसका वादा, उसने तो कहा था मैं आऊँगा। लेकिन अगर हम 10वीं आयत में पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, लेकिन खुदावन का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोर गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजरामे फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और ज़मीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के आने का वादा कहाँ गया, कलाम मुकद्दस में उनके सवाल का आगे आंसर पतरस दे रहा है और वो कह रहा है कि यीशु मसीह का दिन चोर की मानी जाएगा। कभी भी मेरे अजीजों चोर आपके घर में बताकर नहीं आता, कभी भी वो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं करता कि आज रात को मैं इतने बजे आऊँगा और तुम्हारा ये सामान चुरा कर ले जाऊँगा। बल्कि जब आप सो रहे होते हैं, जब आपके वहम गुमान में भी नहीं होता, जब आपको ज़रा आइडिया भी नहीं होता, उस दिन चोर आ जाता है और आपका सब कुछ चुरा कर ले जाता है। और फिर दिन की रोशनी में आपको पता चलता है कि आप लूटे गए हैं। फिर आप लोगों को बताते हैं कि रात को हमारे घर में चोरी हो गई। सेम लाइक खुदावंद यीशु मसीह ने भी ऐसे ही आना है, चोर की मानिद उसने आना है। यानी कि उसने ना मुझे बताना है, ना आपको बताना है, ना ही उसने कोई अपना फरिश्ता भेजना है कि जाओ लोगों को बता कर आओ कि मैं आने वाला हूँ। ऐसा कुछ नहीं होना। उसने कलाम में वाज़ेह बता दिया है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। और जो लोग कहते हैं कि हज़ारों साल से हम ये सुन रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाले, लेकिन 1000 साल हो गए हैं, बल्कि कई साल हो गए हैं, अभी तक यीशु नहीं आया, उनके लिए भी ये आंसर बाइबल मुकद्दस में ही मौजूद है। अगर आप दूसरा पतरस 3 बाब की 8वीं आयत में पढ़े तो कलाम में लिखा है, ए अजीज़ो, ये ख़ास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावन के नज़दीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर है। खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं। कितनी खूबसूरत बात है। जो लोग कहते हैं कि साल हो गए, 1000 साल तो सुन रहे हैं, बचपन तो सुन रहे हैं यीशु मसीह ने आना है, दादा परदादा के मुंह से सुन रहे हैं यीशु मसीह ने आना, अभी तक आए नहीं, ठट्ठों में उड़ाते हैं। कलाम में से ही उनके क्वेश्चन का आंसर है और वो ये है कि यीशु मसीह की नज़र में 1000 दिन एक दिन के बराबर है, 1000 बरस एक दिन के बराबर, 1000 साल एक दिन के बराबर है। और देखिए यीशु मसीह को आसमान पर गए हुए 2000 और कुछ साल हो गए हैं। इसका मतलब है कि उसकी नज़र में 1000 साल एक दिन के बराबर है। इट्स मीन कि यीशु मसीह को आसमान पर गए हुए अभी 2 दिन हुए हैं। आपकी नज़र में ये हज़ारों साल है, लेकिन उसकी नज़र में 1000 साल एक दिन के बराबर है और उसको आसमान पर गए 2000 साल हमारे मुताबिक हो गए हैं, लेकिन यीशु मसीह की काउंटिंग के मुताबिक अभी उसको 2 दिन ही हुए हैं आसमान पर गए। तो हमें लगता है कि यीशु को देर हो गई है, लेकिन कलाम में लिखा है कि वो अपने वादे में देर नहीं करता जैसी बाज़ लोग समझते हैं। जैसा आप समझ रहे हैं कि उसने देर कर दी है, असी बचपन तो सुनते आए हैं, दादा परदादा से सुनते हैं, अभी तक वो आया नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। वो बहुत जल्द आने वाला है। अगर आपको पतरस पर यकीन नहीं हो रहा, यूहन्ना पर यकीन नहीं हो रहा, तो आप कलाम मुकद्दस में से मुकाशवा 21 बाब निकाल लें। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि जिसकी आमद होनी है, जिसने आना है, वो 22वें बाब की 7वीं आयत में खुद कह रहा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। हालेलुया। यहाँ पर ना कोई नबी, ना कोई इंसान, ना कोई रसूल, बल्कि यीशु मसीह खुद कह रहा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। तो जो लोग अपनी ऐशो इशरत में पड़े हैं, जो कहते हैं हम कल तौबा कर लेंगे, फिर आज का दिन गुजर गया, फिर कल तौबा कर लेंगे, फिर वो दिन गुजर गया, चले हम कल तौबा कर लेंगे, हम संडे को तौबा कर लेंगे, हम अगले संडे को तौबा कर लेंगे, तो उनके लिए बताना चाहती हूँ कि हर दिन ऐसा गुजारे जैसे आज आपका आखिरी दिन होता है। क्योंकि यीशु मसीह का कोई पता नहीं कि वो आज ही आ जाए और आपको तौबा का मौका ना मिले। और जिन्होंने तौबा नहीं की होगी वो यीशु मसीह को देखकर कहेंगे पहाड़ों और टीलों हम पर गिर पड़ो ताकि आने वाले की नज़र से बच सकें।
لیکن جنہوں نے تو حکم مانا ہوگا, جنہوں نے اس کی نجات پر ایمان رکھا ہے, جنہوں نے اس کی مصلوبیت پر ایمان رکھا, جنہوں نے اس بات پر ایمان رکھا کہ اس نے دوبارہ آنا ہے عدالت کے لیے, اس کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے ہیں, وہ تو ہوا میں اڑ کر استقبال کریں گے. وہ تو یسوع مسیح کے ساتھ نئی یروشلم میں عیش کریں گے. نئی یروشلم میں وہ یسوع کے ساتھ روشنی میں رہیں گے, زندگی میں رہیں گے. وہاں نہ رونا ہوگا, نہ دانتوں کا پیسنا ہوگا, نہ کوئی قرض ہوگا, نہ کوئی لعنت, نہ کوئی بیماری ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یسوع مسیح کے ساتھ نئی یروشلم میں زندگی بسر کریں تو اس کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اور اپنے آپ کو تیار کیسے کرنا ہے؟ اس کے حکموں پر عمل کر کے, اپنے اندر معافی کی اسپرٹ کو پیدا کریں. کسی کو معاف کر نہیں سکتے آپ تو پاک روح کو موقع دیں, آپ کی زندگی میں کام کریں. دوسروں کو معاف کریں, برداشت کریں, گناہ سے دور رہیں, بدی سے دور رہیں. یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار رہیں. ہر ایک بات میں ابلیس کو شرمندہ کریں. جب آپ ابلیس کو شرمندہ کریں گے صحیح معنوں میں آپ یسوع کے فالوور ہوں گے. ابلیس آپ کو بڑے مزے کی چٹپٹی باتیں کرنے کے لیے کہتا ہے, اور وہ آپ کو وقتی طور پر بڑی مزے کی لگتی ہیں, لیکن ان کی انتہا میں موت ہے. اور یسوع کی باتیں جو واقعی مزیدار ہیں وقتی طور پر آپ کو کڑوی لگتی ہے, لیکن اس کی انتہا میں زندگی ہے. سو فیصلہ آپ کے پاس ہے. ڈیسیژن از ان یور ہینڈس, آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ زندگی کا چناؤ کرتے ہیں یا موت کا. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.